गाइस यूजुअली इस चैनल पे मैं आपको दिखाता हूँ देसी क्राइम न्यूज़, जो वो क्राइम जो हम लोग देसी लोग करते हैं अमेरिका में या दूसरे देशों में। आज उल्टा दिखाऊंगा। आज की न्यूज़ में आपको दिखाऊंगा एक इंडियन ज्वेलरी स्टोर ओनर की जो चोरी हुई है अमेरिका में। न्यूज़ है पिछले साल की, पर इसकी वीडियो 3 दिन पहले रिलीज़ हुई है। और आप भी देखना कि भाई 20, 25, 30 लोग आके एकदम चोरी करके भाग गए। $1.7 मिलियन की ज्वेलरी, प्रॉब्ली लाइक 16 करोड़ रुपए की ज्वेलरी 1 मिनट में उठा के भाग गए। 1 मिनट में पुलिस को पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। देखो, आप पहले आपको न्यूज़ दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं। Getting a first look at a brazen smash and grab robbery in Fremont. I'm Dan Thorne. The video just released by the Department of Justice shows a mob of thieves crashing into a jewelry store and stealing lots of expensive jewelry. KRON 4's Jack Molman has our top story tonight. This shocking robbery may have happened last year, but it's only now that we're getting the complete picture into what happened here in Fremont, including a group of businesses here on this strip banding together to make sure that they're not the next target. थोड़ा सा बैकग्राउंड ताकि आपको आगे की न्यूज़ समझ आए। यह है कुमार ज्वेलर्स। कुमार ज्वेलर्स एक इंडियन ओनर का ज्वेलरी स्टोर है। फ्रीमॉन्ट एक सिटी है कैलिफोर्निया में, नॉर्थ कैलिफोर्निया में। जो होता है ना जैसे नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, ऐसे नॉर्थ कैलिफोर्निया साउथ कैलिफोर्निया। तो नॉर्थ कैलिफोर्निया में एक सिटी है कॉल्ड फ्रीमॉन्ट। बहुत ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा इंडियन लोग रहते हैं वहाँ पर। इसलिए वहाँ पर एक ज्वेलरी स्टोर है इंडियन ओनर की, कुमार ज्वेलर्स। और 30 साल से ज़्यादा से काम कर रहे हैं यहाँ पर ये लोग। पिछले साल 18 जून 2025 में इनके यहाँ पड़ी थी, ये चोरी हुई थी। 25-30 लाइक ऐसे लोग आके एकदम से चोरी करके भाग गए थे। उसकी वीडियो अब रिलीज़ हुई है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और गौर करना, ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ना, अब इसके स्टोर के बाहर बोलार्ड्स लगे हुए हैं। बोलार्ड्स मतलब वो जो मेटल के या पत्थर के डंडे होते हैं ना, ताकि गाड़ी अंदर ठोक के ना चली जाए, उसे बोलार्ड्स बोलते हैं। वो अब लगे हुए हैं आज की वीडियो में। जो बंदा रिपोर्टर दिखा रहा है, पिछले साल नहीं थे, इसलिए गाड़ी ठोक के अंदर घुस गई थी। Dramatic video shows the moments a car filled with robbers smashes into a Fremont jewelry store. The masked thieves rush in and raid the shop as the store owners run for cover. Traumatized. We feel very unsafe. The smash and grab robbery happened at Kumar Jewelers at the Maori East Shopping Center last June. The store's owner did not want to go on camera, but told us they've been trying hard to keep their business open since the brazen robbery. Across the way, at Niche Business Cafe, Ivana Nishkadi says the entire strip of businesses has felt the ripple effects of this crime. Like after I got these things, the metal bars up installed and all that, I feel a little bit more safe. And while 4 of the more than dozen thieves were arrested last year, the threat of robberies and burglaries has not gone away. Lot of shops in this shopping center got broken in. The pizza shop, they got broken in twice. The jewelry shop got broken in. And a lot of the places got broken in. Niche Business Cafe has also fallen victim to smash and grabs. They stole the credit card machine and they hacked into the bank account. The trauma is tremendous. So when we get traumatized, that healing from that, like the violation, that my privacy being violated, that is quite a lot. Businesses along the shopping center have installed gates and bollards to curb future break-ins. Many saying the security patrols have made them feel safer, but they still notice people hanging around the area late at night. You see the police patrolling, but also I think it will be good to have programs for the people who are very unfortunate, so that they can be involved and the crime rate can go down, and then it's good for everybody, community and the businesses. दो चीज़ों का गौर करना का इस वीडियो में कि टारगेटेड चोरी नहीं है इंडियंस के अगेंस्ट। कई हो सकता है इंडियन न्यूज़ चैनल या फिर कई इंडियन क्रिएटर्स आपको बोलेंगे कि इंडियन स्टोर ओनर्स को, इंडियन ज्वेलरी ओनर्स को, इंडियन ज्वेलरी स्टोर ओनर्स को टारगेट किया जा रहा है अमेरिका में। टारगेट नहीं कर रहे, चोरों का काम है चोरी करना। उनको जहाँ दिखा सामान गोल्ड, उन्होंने चोरी कर लिया। जैसा कि वीडियो में बताया, नीश बिजनेस कैफ़े, पिज़्ज़ा शॉप, वहाँ पे भी चोरी करी इन लोगों ने। पिज़्ज़ा शॉप, आप सोचेंगे पिज़्ज़ा चुराने नहीं गए थे, वो बेसिकली स्टोर का जो होता है ना सामान में कैश वगैरह जो होता है, वहाँ से वो फटाफट चुरा के भागने की कोशिश थी इनकी। तो इंडियंस को टारगेट नहीं किया जा रहा है। दिस हैपन टू बी इंडियन बिकॉज वो ज्वेलरी में गोल्ड में काम करता था, इसलिए उसकी दुकान लूटी गई। नॉट ओनली अगेंस्ट इंडियंस। दूसरी चीज़ नोट करने वाली है कि इन्होंने अब अपनी दुकान के आगे वो मेटल की बार्स वगैरह लगवा ली हैं, जो पिछले साल नहीं थी, क्योंकि चोरी पिछले साल हुई थी। तो अब जाके ये थोड़ा सा प्रोटेक्ट हुए हैं। और एक चीज़ और नोट करना, यहाँ पर मोस्टली क्या मैं बोलूँगा, हर दुकान ओनर की यहाँ पर एक इंश्योरेंस होती है, ताकि ऐसी सिचुएशंस के लिए। हाँ, ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता कि इंश्योरेंस यूज़ करनी पड़े, ऐसे दिन देखने पड़े, पर अगर ऐसे दिन देखने पड़ते हैं
देन दे आर मोस्टली प्रोटेक्टेड, इंश्योरेंस से पैसा मिल जाता है। गाइस यहाँ पे मैं 2 सेकंड का पॉज लूँगा, आपको रिमाइंड कराऊंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियो एंजॉय करते हैं, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। बहुत लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको रोज़ आएगा। चलो अब आपको डिटेल में पूरी वीडियो दिखाता हूँ, कैसे चोरी हुई, कैसे चोर आए और कितनी जल्दी, लाइक 60-70 सेकंड में चोरी करके भाग गए थे। तो इस वीडियो में गाइस साउंड नहीं है क्योंकि सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है, बट ये देखो सीधा कार पीछे से आई, ठोक दिया अंदर, क्योंकि बोलार्ड्स नहीं थे। रिमेंबर बोलार्ड्स, जो पत्थर के या मेटल के जो बैरियर्स होते हैं कार को टक्कर मारने से रोकने से। और पीछे से कम 10 कारें आई होंगी और उसमें से 20, 25, 30 लोग मास्क मैन हुडी पहन के हथौड़े वगैरह लेकर निकल गए। इनका सिक्योरिटी गार्ड था। कई लोग सोचेंगे सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं रखते, अगर आप ज्वेलरी की शॉप है, आपके पास मिलियन डॉलर का सामान होता है, सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं है? सिक्योरिटी गार्ड था, पर किसी बंदे ने तो उसको डरा के भगा दिया वहाँ से। और इतना कोई झुंड में कोई आता है ना लूटने, तो सब डर जाते हैं गाइस। एक बंदा, एक सिक्योरिटी गार्ड क्या ही बचा लेगा जब 20, 25, 30 लोग सामने से आएंगे। एंड दिस इज़ नॉट अ स्पेड अप वीडियो, स्पीड नहीं बढ़ाई गई है वीडियो की, लाइव है आपके सामने। ऊपर आप टाइम स्टैम्प देख सकते हैं, जून 18, और एक सेकंड करके टाइमर बढ़ रहा है। तो इतनी जल्दी इन लोगों ने चोरी करी है। बेसिकली स्पीड नहीं बढ़ाई गई है वीडियो की, लाइव है। झुंड में गुच्छे में लोग आए, हुडी पहन के, मास्क पहन के, और लूट रहे ज्वेलरी, गोल्ड। और रिपोर्ट है कि कम से कम इन्होंने 75 से 80% का स्टॉक सामान लूट लिया था 70 सेकंड में। ये जो 70 सेकंड में चोरी करके भाग ले लोग, ऑलमोस्ट 80% सामान लूट के गए। तभी इसकी लाइक $1.6 मिलियन की एस्टिमेट बनाई गई है, विच इज़ रफली 16 करोड़ रुपए आज की तारीख में। आप देखना कितनी जल्दी ये लोग तोड़ ताड़ के सामान चोरी करके निकल जाएंगे। और जब एक पिछली वीडियो में आपने देखा था ना, एक ओनर भी बैठी थी, आप सोचेंगे खाली क्यों है? खाली नहीं है। जब टक्कर मारी ना कार ने, तो जो 1-2 अंदर ओनर या ओनर की जो एम्प्लॉय थी, वो डर के भाग के अंदर घुस गई थी। क्योंकि मैंने बताया ना, यहाँ पे लोग इंगेज नहीं होते हैं, क्योंकि लाइफ पहले होती है। इंश्योरेंस से थोड़ा बहुत क्लेम मिल जाएगा, कितना मिलेगा, $1.6 मिलियन में से कितना मिलेगा, कितने की कवरेज है, उसमें भी मैटर करता है। बट इंगेज नहीं होते लोग, लाइफ पहले होती है। तो स्टोर ओनर तो अंदर घुस गई थी, पर देखो 70 सेकंड के अंदर, 80 सेकंड के अंदर चोरी करके भाग लिया अपनी कारों में। और बल्कि एक सामने वाली कार में तो कोई कपल बैठा हुआ दिख रहा है गाड़ी के अंदर, और वो भी बेचारा फंसा हुआ है। थैंकफुली उनकी जान सेफ रही, उनको नहीं मारा इन लोगों ने। चोर तो चोर होते हैं ना, चोरी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी की जान भी ले सकते हैं। और बस ये भाग लिए सारे के सारे। अब सिक्योरिटी गार्ड भी आ गया नीचे, आप देख रहे हो वीडियो में, ये आ गया। वो भी क्या ही करता ना, 30 लोग आपके सामने हथौड़ा लेके आएंगे, तो वो भी अकेला क्या करेगा, भाग गया वो भी। ये निकल लिए चोर सारे। तो अभी जब पुलिस वालों को जब कॉल किया गया था ना, तो उसके बाद पुलिस वालों ने एक ब्लैक एक्यूरा को परसू किया। उसके पीछे भागे वो लोग और बता रहे थे कि रॉन्ग साइड ऑफ द रोड गाड़ी चलाई एक्यूरा ने, स्टॉप साइन को तोड़ा, इंटरसेक्शन रेड लाइट को तोड़ा, 80 माइल तक की स्पीड से ऑपोजिट साइड में गाड़ी चलाई। 80 माइल इज़ लाइक रफली 150 किलोमीटर की स्पीड से भी गाड़ी चलाई भागने के लिए, क्योंकि ये चोर भागे थे। एक कार के पीछा किया पुलिस वालों ने। कार ने क्रैश किया ज़मीन पे, लाइक पैदल भी भागा चोर लोग पैदल भी भागे। 4 लोगों को अरेस्ट भी किया पुलिस वालों ने। 4 लोग जिनके नाम है अफातू पैकी फसीला 20 साल का, होजे 20 साल का, आंद्रेस 19 साल का और एक टॉम पार्कर 19 साल का। ये 4 लोगों को पकड़ा भी था पुलिस वालों ने, और उनकी कार से थोड़ा सा सामान भी रिकवर किया। तो 20-25 पता नहीं कितने लोग थे, मैंने 20-25 तो काउंट कर ही लिए थे ये जो क्लिप में, बट सिर्फ 4 लोग पकड़े गए और थोड़ा सा सोना पकड़ा गया, बाकी तो निकल लिया, पिघलू दिया, किसी को कुछ नहीं पता। और एक बार सोना पिघला दिया फिर तो कोई उसकी ट्रेल ही नहीं है, फिर तो कोई ट्रेस ही नहीं कर सकता उसको, राइट। तो पर आपको पिछले साल की न्यूज़ दिखाता हूँ, जब एक्चुअली में स्टोर ओनर जिसके यहाँ पे कुमार ज्वेलर की जब रॉबरी हुई, तो उसका भी इंटरव्यू हुआ, वो भी दिखाता हूँ आपको। Kumar Jewelers has operated this storefront behind me in Fremont for more than 3 decades, but all that's left inside tonight is shattered glass following a smash and grab robbery. A heavy police presence this evening outside of Kumar Jewelers in Fremont, and after 30 years of business in this shopping plaza, the owners are wondering why they were targeted. Of course, you can say blood, sweat, and tears, and many years of work, and within like less than a minute or something, 15 people come and just go break everything down.
Sheena Verma is a part of the family that owns this jewelry store. According to Fremont police, a group of suspects robbed the store this evening using this car to ram into the front entrance. Once inside, they proceeded to smash display cases, stealing tens of thousands of dollars worth of jewelry. Sheena says her mom, dad, and another worker were the only ones inside of the store when this all took place, and thankfully they weren't injured. Sheena's husband was on the phone with her mom as the robbery unfolded. And that's when Sheena called 911. They said there was people with masks and hammers, and it just everything happened so fast. Officers did locate one of the suspect vehicles, taking 4 suspects into custody. But others are still on the loose, and the investigation is still active. Sheena hopes her family can recover following this devastating incident. This is my parents' life work. Why can't they feel safe? And why can't they build the American dream like they're supposed to? तो अगर आपने क्लिप में ध्यान दिया हो, इसमें बोलार्ड्स नहीं थे, तभी कार एकदम ठोके दुकान तक पहुंच गई थी। अब बोलार्ड्स आ गए हैं। काफ़ी सिक्योरिटी मेजर भी पुलिस वालों ने बढ़ाए, लाइक पेट्रोलिंग हो रही है अब फ्रीक्वेंट, क्योंकि अगर ज्वेलरी की दुकानें हैं और आसपास भी लूट रहे हैं वो लोग, तो फिर तो गलत है ना, लाइक फिर तो बनता है। और ज्वेलरी की दुकान बहुत ईजी टारगेट होता है लोगों का। रिमेंबर 1-1.5 मिनट के अंदर 60-70 सेकंड में लूट के भागे थे। क्यों भागे थे पता है आपको? क्योंकि 2-3 मिनट में तो पुलिस आ जाती है। इसलिए चोरों को पता था कि हमें 1 मिनट के अंदर अंदर भागने ही भाग रहा है, तभी वो 80% तक सामान सोना लेके भागे। सारा 100% क्यों नहीं लेके भागे? क्योंकि अगर और लालच की वजह से और डिले किया होता ना, पुलिस ने पकड़ लिया होता उनको। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है अमेरिका में कि ऐसे इमरजेंसी सर्विसेज जो होती हैं, पुलिस, एम्बुलेंस, फायर, ये सब 2-3 मिनट में आ जाते हैं आपके पास। इसलिए ये लोग 80% तक का सामान लेके विदिन 1 मिनट में भाग लिए थे, क्योंकि और डिले करते तो पकड़े जाते। तो अब इन स्टोर ओनर ने पहले से तो थोड़ी सी ज़्यादा प्रोटेक्शन हुई गई है। सिक्योरिटी गार्ड तो पहले भी था, बोलार्ड्स आ गए हैं, CCTV भी अब इन्होंने अपग्रेड किया है, क्योंकि पुलिस वालों की इंस्ट्रक्शन है कि हाई डेफिनेशन वाले अब रखना, ताकि ईजिली हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। बाय द वे, वो जो जिन गाड़ियों में आए थे उनका नंबर भी ज़्यादा हैंडी नहीं रहा, क्योंकि वो चोरी की गाड़ियाँ थी। ये सब स्टोलन व्हीकल्स में आते हैं सारे चोर, क्योंकि उन्हें पता है नंबर तो आ ही जाना है। तो इसलिए चोरी की गाड़ियों में आए थे चोरी करने, और इसलिए वो बंदा अपनी कार छोड़ के भाग गया था जिससे ठोकी थी उसने। कई लोग बोलते हैं कि भाई स्टोर ओनर्स को अगर मिलियन डॉलर का सामान होता है तो आपको गन्स रखनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया गाइस कि यहाँ पर अमेरिका में इंडल्ज नहीं करते लोग, इन्वॉल्व नहीं करते। चोरी होती है तो होने देते हैं। जैसे ओनर थी ना, वो भागी थी अंदर कमरे में, क्योंकि यहाँ जान पहले होती है। इंश्योरेंस होती है सबकी, आई डोंट नो इन्होंने कितने की इंश्योरेंस लेके थी, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन डॉलर की। तो अप टू जितनी कवरेज होगी और डिडक्टेबल काट कूट के वो सब मिल जाता है पैसा, तो लॉस नहीं हुआ होगा। पर मैंने ये भी सुना है कि ये लोग कह रहे थे कस्टमर्स की भी ज्वेलरी थी इनके पास, कि अब जैसे बेचते तो थे ही थे, पर अगर कोई कस्टमर आ रहा है उनकी ज्वेलरी पॉलिश करने के लिए या कुछ चेंजेस करने के लिए, कस्टम करने के लिए, राइट, तो वो भी रखी थी उनके पास, वो भी चोरी हो गई। तो रेपुटेशनल डैमेज भी तो होता है ना गाइस। मॉनेटरी पैसों के साथ साथ रेपुटेशन का भी डैमेज होता है, लॉस होता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की स्टोरी गाइस। आज मैंने आपको दूसरी साइड ऑफ स्टोरी सुनाई है। यूजुअली मैं आपको देसी क्राइम न्यूज़ दिखाता हूँ, आज मैंने उल्टा दिखाई है। एक इंडियन स्टोर ओनर, इंडियन ज्वेलरी स्टोर ओनर की चोरी हुई थी पिछले साल। उसकी वीडियो अभी 2-3 दिन पहले रिलीज़ हुई है, बहुत वायरल हो रही थी। मैंने सोचा आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। आपको अच्छी लगे सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में गाइस, बाय।